بنگلہ دیش میں کل شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرنے کے بعد پاکستان میں حکومت کو اپوزیشن یہ تانے دے رہی ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد کے انجام سے سبق سیکھے اور بنگلہ دیش کی طاقتور ترین وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو کیوں اس انجام کا سامنا کرنا پڑا اور کن حالات میں ان کے 15 سالہ طویل اقتدار کا خاتمہ ہوا، اس کے حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ابھی تک بنگلہ دیش میں اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکا ہے اور سیاسی بحران وہیں پر کھڑا ہے۔ فی الحال فوج ملک کا نظام حکومت چلا رہی ہے اور طلبہ تحریک اپنے ایک کے بعد ایک مطالبات منوا رہی ہے، مگر اس سب کے دوران بنگلہ دیش میں فسادات اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی تھم نہیں سکا ہے۔ آج مظاہرین نے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کے گھر پر دھاوا بولا اور سامان لوٹ لیا، جبکہ ڈھاکہ میں ہی بھارت کی جانب سے قائم کردہ اندرا گاندھی کلچرل سینٹر کو بھی آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا، کیونکہ بھارت کی جانب سے مسلسل شیخ حسینہ واجد کی حمایت کرنے پر مظاہرین بھارت کے خلاف بھی شدید غصے میں ہیں۔ شیرپور میں مشتعل افراد نے جیل پر حملہ کر کے 500 قیدی فرار کرا دیے، متعدد دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ نیو یارک میں بھی بنگلہ دیشی قونصل خانے پر مظاہرین نے دھاوا بول کر شیخ حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان کی تصویریں اتار دیں اور فسادات میں اب تک 400 سے زائد افراد بنگلہ دیش میں مارے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی کل کے دن جہاں طلبہ تحریک کو سب سے بڑی کامیابی ملی، تو ساتھ ہی کل کا دن بنگلہ دیش کی حالیہ تاریخ کا ایک اور خون ریز دن ثابت ہوا، جس میں پرتشدد مظاہروں اور فسادات کے دوران 135 افراد مارے گئے اور ڈھاکہ سمیت ملک بھر میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور جلاؤ گھیراؤ کا بازار گرم رہا اور متعدد مقامات پر شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دفاتر اور رہنماؤں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں اور پورٹریٹس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ بی بی سی کے مطابق 450 تھانوں پر بھی حملے کیے گئے، جس کے بعد پولیس اہلکار ہی ہڑتال پر چلے گئے ہیں اور بنگلہ دیش میں ٹریفک اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی نیم فوجی دستوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس صورتحال میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی غیر یقینی ختم کرنے کے لیے فوری طور پر عبوری حکومت بنائی جائے جو فوری انتخابات کا اعلان کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک میں عبوری حکومت کے قیام کے لیے جہاں ملک کی فوج مرکزی کردار ادا کر رہی ہے، تو وہیں اس معاملے پر بھی طلبہ تحریک سب سے بڑی سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اس تحریک کے رہنما یعنی اسٹوڈنٹ لیڈرز موجودہ سیٹ اپ کے خاتمے سے لے کر عبوری حکومت کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ طلبہ تحریک اس حد تک بااثر ہو گئی ہے کہ ملک کی فوج بھی ان کے مطالبات ماننے پر مجبور نظر آ رہی ہے۔ طلبہ کے نمائندوں نے آج صدر سے ملاقات بھی کی ہے۔ طلبہ تحریک کل تک مطالبہ کر رہی تھی کہ ملک کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو جائیں، تو فوج نے شیخ حسینہ واجد کی حمایت سے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں استعفیٰ دینے کا کہہ دیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور پھر آج طلبہ تحریک نے الٹیمیٹم دیا کہ 3 بجے تک ملک کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے، ورنہ سخت رد عمل دیا جائے گا۔ تو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیشی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ ساتھ ہی طلبہ تحریک نے 24 گھنٹے کے اندر نوبیل انعام یافتہ ماہر معیشت ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے رائٹرز نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر بننے کی پیشکش کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں لمحہ بہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے، اہم فوجی تعیناتیوں اور تبادلے بھی ہو رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی کابینہ کے وزیر خارجہ اور وزیر اطلاعات کو بنگلہ دیش میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ بار کے صدر نے مطالبہ کر دیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو بھارت گرفتار کر کے بنگلہ دیش کے حوالے کرے اور سیاسی ججز 1 ہفتے کے اندر اندر مستعفی ہو جائیں۔ بی بی سی کے مطابق بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ لگنے والے بارڈر پر سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ ساتھ ہی بنگلہ دیشی صدر نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی سزا معاف کر دی ہے، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور ان کی جماعت کا عبوری حکومت بنانے میں اہم کردار ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، طلبہ تحریک کے نمائندوں نے ملک میں بھرپور توجہ حاصل کی ہوئی ہے۔ وہ باقاعدہ سیاسی لیڈرز کی طرح پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں اور انہیں بھرپور میڈیا کوریج دی جا رہی ہے، اور دوسری جانب مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے والی شیخ حسینہ واجد کا اپنا مستقبل ابھی تک غیر واضح ہے۔ وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ خبر آئی، لیکن برطانوی حکام اس کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ خبر بھی آئی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق شیخ حسینہ واجد برطانیہ میں پناہ لینا چاہ رہی ہیں، جہاں ان کی بہن اور بھانجی رہتی ہیں۔ ان کی بھانجی برطانیہ کی حکمران جماعت لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں۔ تاہم برطانوی حکام نے یہ کہہ کر شیخ حسینہ واجد کے برطانیہ میں پناہ کے امکانات کو محدود کر دیا ہے کہ برطانوی امیگریشن قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ جو کسی کو برطانیہ میں اسائلم یا عارضی پناہ لینے کی اجازت دیتی ہو، چاہے
وہ کوئی سابق وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ برطانیہ کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کسی کو اسائلم حاصل کرنے کے لیے عالمی تحفظ چاہیے تو جس محفوظ ملک میں وہ سب سے پہلے پہنچتا ہے اسے وہاں اسائلم کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی فی الحال شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں رہنا پڑ سکتا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں بھارت میں کسی محفوظ مقام پر رہائش دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب تک یہ صورتحال معمہ بنی ہوئی تھی کہ اتوار اور پیر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے فوج نے اچانک استعفیٰ طلب کر لیا، اور شیخ حسینہ واجد جو مستعفی ہونے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ فوری طور پر مستعفی ہو کر کیسے بھارت فرار ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور اندرون خانہ کیا چل رہا تھا، اس حوالے سے BBC نے اہم تفصیلات شائع کر دی ہیں، جس کے مطابق بنگلہ دیش میں پیر سے قبل بہت سے لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 15.5 برس برسر اقتدار رہنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس طرح ملک سے چلی جائیں گی، اور وزیر اعظم بھی وہ جنہیں ایک دور میں لوگ خاتون آہن کہا کرتے تھے۔ پیر کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہاؤس سے شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ کی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت روانگی سے قبل اتوار کی رات اور پیر کی صبح بھی صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی رہی۔ اتوار کو ملک بھر میں کوٹا سسٹم مخالف تحریک کے مظاہرین اور عوامی لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں 100 کے قریب افراد مارے گئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس دوپہر عوامی لیگ کے کچھ سینئر رہنماؤں اور مشیروں نے شیخ حسینہ واجد کو مطلع کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حالات کو طاقت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے انہیں یہ تاثر دیا کہ اب صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ ذہنی طور پر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے بتایا کہ ان کی والدہ اتوار سے ہی استعفیٰ دینے کا سوچ رہی تھیں۔ ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ صرف اسپیشل سیکیورٹی فورس، پریزیڈنٹ گارڈ ریجمنٹ اور آرمی ہیڈ کوارٹرز میں کچھ سینئر فوجی افسران ہی جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد نے استعفے پر کب دستخط کیے اور وہ کب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ملک سے چلی گئیں۔ ان کے مطابق یہ سارا کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا۔ BBC کے مطابق عسکری ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شیخ حسینہ واجد پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئیں۔ اس وقت ان کی منزل بھارت کی ریاست تری پورہ میں اگرتلہ تھی۔ وہاں اترنے کے بعد شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ کو بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے دارالحکومت دہلی پہنچا دیا گیا۔ BBC کے مطابق حکام نے بتایا کہ شیخ حسینہ واجد یہ دونوں آپشن کھلے رکھنا چاہتی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ پروگرام کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے تو پھر وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ تاہم اس کوشش کے ناکام ہونے کی صورت میں ان کے ملک چھوڑنے کی بھی تیاری کر لی گئی تھی۔ طاقت کے ذریعے آخری دم تک اقتدار میں رہنے کی کوشش بھی جاری رہی، لیکن فوج مزید جانی نقصان نہیں چاہتی تھی۔ اتوار کو ملک کے مختلف حصوں میں عام لوگ اور مظاہرین فوج کے سپاہیوں اور افسران کے ساتھ گلتے ملتے دکھائی دیے، اور بظاہر اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوج کے اعلیٰ افسران نے محسوس کیا کہ حالات حکمرانوں کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے پیر کی صبح پولیس اور تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ ایک مقامی اخبار کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے اس بات پر اپنا غصہ ظاہر کیا کہ سیکیورٹی فورسز صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں پولیس کے سربراہ نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بتایا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پولیس کے لیے زیادہ دیر تک اتنی سخت پوزیشن برقرار رکھنا ممکن نہیں رہے گا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب تک لاکھوں مظاہرین ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر جمع ہو چکے تھے۔ ایک سینئر فوجی اہلکار نے بتایا شیخ حسینہ واجد کو مطلع کیا گیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کریں گے، اور اس صورت میں شیخ حسینہ واجد کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ پیر کی صبح پولیس اور فوج کے سربراہان نے شیخ حسینہ واجد کی بہن شیخ ریحانہ سے بھی بات چیت کی تاکہ وہ اپنی بہن کو عہدہ چھوڑنے پر آمادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ پیر کی صبح سے ہی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو پولیس اور فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اعلیٰ فوجی حکام کے مطابق یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ شیخ حسینہ واجد ایئرپورٹ تک باحفاظت پہنچ سکیں۔ ساتھ ہی صبح 9 بجے کے قریب ملک میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا۔ یہ انتظام بھی بظاہر اس لیے کیا گیا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کی حرکات سے متعلق کوئی خبر
सोशल मीडिया पर ना फैले। शेख हसीना वाजिद के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन को दोबारा फाल कर दिया गया था। BBC की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि बांग्लादेशी हुक्काम का कहना था कि भारत से पहले ही शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बारे में राब्ता कर लिया गया था और भारत की तरफ से बता दिया गया था कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के जरिए अगरतला पहुंच सकती हैं तो वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे ने बताया कि उनकी वालदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने इसरार किया कि उन्हें किसी महफूज पनाहगाह में जाना चाहिए। फिर शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत रवाना हो गई। दिल्ली के करीब एयरबेस से लेकर उन्हें दिल्ली के मज़ाफ़ात में गाज़ियाबाद में नीम फौजी गेस्ट हाउस में रखा गया है। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के बेटे ने अपनी वालदा के मुस्ताफ़ी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बांग्लादेशी अवाम नाशुक्रे हैं, मेरी वालदा अब कभी सियासत में वापस नहीं आएंगी, लोग उनका दौर इक़्तिदार हमेशा याद करेंगे। The developments in Bangladesh are terrible. I mean, if you look at it, it's anarchy. बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। वहाँ कहीं भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। गलियों में जत्थे घूम रहे हैं जो घरों और फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि अक़लियतों और हिंदुओं के मंदिरों पर भी ये लोग हमले कर रहे हैं। बांग्लादेश असल में अनारकी का शिकार हो चुका है। मेरी वालदा शेख हसीना वाजिद का हौसला बुलंद है, मगर वो इस वक्त बहुत दुखी हैं और बांग्लादेश के लोगों से इंतहा से ज़्यादा मायूस हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के अवाम के लिए बहुत कुछ किया, मगर बदले में अवाम ने उनके साथ ये सब किया। वो अब कभी सियासत में वापस नहीं आएंगी। मेरी वालिदा शेख हसीना वाजिद इस वक्त 77 बरस की हो चुकी हैं और वैसे भी ये उनकी आखिरी हुकूमती मुद्दत थी और वो इसके बाद रिटायर हो जाती। अब ये जत्थे हमारी पार्टी अवामी लीग के लीडर्स को ढूंढ कर मार रहे हैं और जिस अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है उसमें अवामी लीग शामिल ही नहीं है, तो फिर हम क्यों इस अवाम की परवाह करें। लोगों ने अपना फैसला किया है तो अब उन्हें ऐसे ही लीडर मिलेंगे जिनके वो मुस्तहिक हैं। मेरी फैमिली ने ये सब पहले भी 3 दफ़ा भुगता है और अब हमारी बस हो गई है। हम बांग्लादेश को बचाने की कोशिश करते करते थक गए हैं। अब बांग्लादेश अपने मसाइल से खुद निपटे, अब ये हमारा मसला नहीं है। मेरी नज़र में बांग्लादेश के अवाम इंतहाई नाशुक्रे हैं, वो बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं और अब उन्हें वैसी ही लीडरशिप मिलेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये अब उनका मसला है, हमारा नहीं। मेरी वालिदा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को बांग्लादेश की तारीख में एक सुनहरे दौर के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि उनकी हुकूमत में बांग्लादेश ऊपर जा रहा था मगर अब सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा। आप आज ही की सूरत हाल देख लें कि मुल्क में हर जगह फसादात हो रहे हैं और इस सब में फौज या अबूरी हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। मेरी वालिदा ने अभी कहीं भी जाने का फैसला नहीं किया है, वो सियासत से रिटायर हो गई हैं। अब वो अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारेंगी। मगर शेख हसीना वाजिद आज इस अंजाम पर पहुंची हैं और उन्हें जिस अवामी नफरत का सामना है उसमें उन्हीं की आमराना तर्ज हुक्मरानी का किरदार है। वो अपने 15 साला दौरे इक़्तिदार में इस हद तक ताकतवर होती चली गई कि उनका सामने करने वाला ही कोई नहीं रहा। मुखालिफ सियासी जमातों को खामोश कर दिया, मुखालिफ सियासतदानों को साइडलाइन कर दिया, जेलों में डाल दिया, बागी और गद्दार करार देकर फांसियां तक दिलवाई। शेख हसीना वाजिद पर मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगे, जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात लगे, उन्होंने मीडिया पर कदगने लगाईं। उनके इस आमराना तर्ज़ हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाती रहीं, मगर सब वैसे का वैसा चलता रहा और इस सब में बांग्लादेशी फ़ौज भी शेख हसीना वाजिद के साथ ही खड़ी रही। यहाँ तक कि अदलिया को भी शेख हसीना वाजिद ने अपने साथ मिला लिया और बांग्लादेश में अमली डिक्टेटरशिप कायम कर ली और साथ ही मर्जी के इलेक्शन करवाकर इक़्तिदार को तूल देती गई। आलमी इदारे तबसरा करने लगे कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को 1 पार्टी स्टेट बना रही हैं। इस दौरान तलबा मुतहर्रिक हुए और उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में कामयाब तहरीकें चलाईं। 2018 में तलबा ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया और फिर रवा साल कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान शेख हसीना वाजिद के मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज़ जिसे वो अक्सर अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करती थी, वो लफ्ज़ उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे की वजह बना और वो लफ्ज़ था रज़ाकार। यानी 1971 में बांग्लादेश बनने की मुखालफत करने वाले, यानी बांग्लादेशियों की नज़र में गद्दार। पहले तो तलबा तहरीक के एहतजाज का पूरा मकसद ये था कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी जाएं। इस एहतजाज को दुरुस्त तरीके से हैंडल करने के बजाय शेख हसीना वाजिद ने ताकत के ज़रिए उसे कुचलने का फ़ैसला किया और इस पर अमल भी किया। और इस दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन यानी बांग्लादेश के लाखों तलबा को रज़ाकार करार दे दिया और इसके बाद से सूरत हाल शेख हसीना वाजिद के लिए यकसर बदल गई। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद तहरीक बन गई। इसमें तलबा के साथ साथ दीगर अफराद भी शामिल होते गए। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के आमराना रवैये पर खुलेआम तनकीद शुरू हो गई। इस दौरान 15 जुलाई को तलबा के एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जब 25 साला तालिब इल्म अबू सैयद बाजू फैलाए पुलिस के सामने आकर खड़े हो गए
तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी, क्योंकि शेख हसीना वाजिद का हुक्म था कि देखते ही गोली चला दी जाए। अबू सैयद की मावरा अदालत कत्ल की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसने एहतजाज भड़काने में अहम किरदार अदा किया। अबू सैयद एक काबिल तालिब इल्म और एक किसान के बेटे थे। उनके कत्ल के बाद तलबा तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा। इस पूरी सूरत हाल पर अल जजीरा ने लिखा है कि ये सब कुछ एक लफ्ज़ रज़ाकार के साथ शुरू हुआ। बांग्लादेश में रज़ाकार लफ्ज़ को एक इंतहाई तौहीन आमेज़ लफ्ज़ समझा जाता है। बांग्लादेश में रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 की जंग में बांग्लादेश बनने की मुखालफत की थी। बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बारे में मशहूर है कि वो 15 साल इक़्तिदार के दौरान अपने हर मुखालिफ या तनकीद करने वाले पर रज़ाकार का लेबल लगा देती थी। और इसी तरह शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर भी रज़ाकार होने का लेबल लगा दिया। 14 जुलाई को शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर हम आज़ादी की जंग लड़ने वालों के पोते पोतियों को कोटा नहीं देंगे तो क्या रज़ाकारों के पोते पोतियों को देंगे। शेख हसीना वाजिद की इस बात ने पूरे बांग्लादेश में मुजाहिरीन को मजीद मुश्तइल कर दिया और एहतजाज में शिद्दत आ गई। तलबा को लगा कि वज़ीर आज़म की इस बात ने उनके एहतजाज को गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्तरद कर दिया है। शेख हसीना वाजिद का यह बयान सामने आने के चंद घंटों बाद ही तलबा ने मार्च करते हुए रज़ाकार के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में और शिद्दत आ गई और अगले 4 दिनों में 200 से ज़ायद अफराद मारे गए, जिनमें से अक्सरियत तलबा और आम शहरियों की थी। जबकि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करने के बजाय अपनी तवज्जो सरकारी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान पर मरकूज़ रखी और वहाँ का दौरा करती रहीं, जिनसे तलबा मज़ीद मुश्तइल हो गए। और वो तलबा जो इब्तिदा में सिर्फ इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से गैर मशरूत मुआफ़ी और इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। और अब मुल्क की अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए भी बांग्लादेश में तलबा तहरीक के फ़ैसलों को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। इस वक्त मुल्क की फ़ौजी क़यादत और सदर तलबा तहरीक के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस तलबा तहरीक का मुस्तकबिल अभी तक वाज़ेह नहीं है और अब तक अबूरी हुकूमत भी कायम नहीं हुई है और बांग्लादेश फ़ौज ही इस वक्त हुकूमत चला रही है और अबूरी हुकूमत के लिए तलबा को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तलबा की तहरीक सदर और आर्मी चीफ से मुतालबा कर रही है कि हम एक ऐसी अबूरी हुकूमत कबूल करेंगे जिसकी सरबराही नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करेंगे। We will form an interim government. हम एक ऐसी अबूरी हुकूमत कबूल करेंगे जिसकी सरबराही नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी अवाम के लिए ये जिम्मेदारी कबूल भी करते हैं। हम सदर मुमलिकत से मुतालबा करते हैं कि वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान करें। Under the leadership of Dr. Mohammad Yunus. तलबा के मुतालबे के साथ साथ आलमी मीडिया भी डॉक्टर यूनुस का नाम ले रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे पर खुशी का इजहार किया और फ्रांस में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम करप्शन और बदइंतज़ामी से आज़ाद हो गए हैं। This is a day of great celebration for us. Today we feel like the second liberation day. ये हमारे लिए एक जश्न का दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक दूसरे यौम आज़ादी की तरह है। हम शेख हसीना वाजिद के जबर से आज़ाद हो गए हैं। हम करप्शन और बदइंतज़ामी से आज़ाद हो गए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हर जगह लाखों लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। सिर्फ ढाका में नहीं बल्कि हर शहर हर कस्बे में जश्न मनाया जा रहा है। शेख हसीना इस सारे मसले की जड़ थी। उन्होंने आवाम को वोट के हक से महरूम कर दिया था। उन्होंने एक के बाद एक जाली इलेक्शन कराए। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें 2/3 नौजवान हैं, मगर उन नौजवानों को एक शफाफ इंतखाबात में वोट डालने का मौका ही नहीं दिया गया। ये वो नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, मगर उन्हें पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे और बांग्लादेश को एक पार्टी और एक शख्स के इक़्तिदार तक महदूद कर दिया गया था, जो एक ही पॉलिसी के तहत मुल्क चला रही थी। और अगर आप इस पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े मसले में फंस जाते थे। इस वक्त हमें एक हुकूमत की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में कोई हुकूमत नहीं है। शेख हसीना फरार हो चुकी हैं। अब एक मखलूत हुकूमत आएगी जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना होगी, क्योंकि बांग्लादेश में कई सालों से शफाफ इंतखाबात हुए ही नहीं है। इसलिए अब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे ताकि हर किसी को वोट देकर अपने लीडर्स का इंतखाब करने का मौका मिल सके। और फिर सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि नीचे बल्दियाती निज़ाम तक लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलेगा। शेख हसीना की हुकूमत ने मुताद्दिद गलत इल्जामात लगाए थे और मुझे काम करने से रोक दिया था। मैं एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाता रहा था और हुकूमत में हर जगह करप्शन ही करप्शन थी। आर्मी के सरबराह, पुलिस के सरबराह, यहाँ तक कि हर इदारे का सरबराह करप्शन में मुलव्विस हो गया था। यहाँ तक कि सरकारी इदारों का ऑफिस बॉय भी करप्शन करके लाखों डॉलर्स कमाता था। Even the office boy makes millions of dollars by corruption.
नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस वक्त फ्रांस में हैं। उनके हवाले से BBC ने लिखा है कि 83 साला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आलमी सतह पर गरीबों के बैंकर के तौर पर पहचाने जाते हैं और उन्हें माइक्रो फाइनेंस कर्जों का एक ऐसा निज़ाम कायम करने का क्रेडिट दिया जाता है जिसकी मदद से लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने में मदद मिली। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक बनाया था जो गरीबों को कारोबार शुरू करने के लिए छोटे और तवील मुद्दती कर्जे फराहम करता था। 2006 में इस काम पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल अमन इनाम से भी नवाजा गया था। जहां दुनिया प्रोफेसर यूनुस की मद्दाह है, वहीं शेख हसीना वाजिद उन्हें अवाम दुश्मन समझती थी। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बार बार गरीबों का खून चूसने वाला करार दिया था और उनके बैंक पर बहुत ज़्यादा शरह सूद वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया था। शेख हसीना वाजिद के दौर में रवां बरस जनवरी में बांग्लादेश की एक अदालत ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मुल्क के लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। इस हवाले से प्रोफेसर यूनुस के हामियों का कहना है कि मामला सियासत पर मबनी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से 2007 में फ़ौज की हिमायत याफ्ता निगरां हुकूमत की बज़ाहिर हिमायत ने शेख हसीना वाजिद को नाराज़ कर दिया था, ख़ास तौर पर इसलिए कि जब वो जेल में थीं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ ढाका से बांग्लादेशी सहाफ़ी रिहान मसूद मौजूद है। रिहान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या अमन आया है, क्या मुजाहिरीन घरों को वापस चले गए हैं या अभी तक जो बिल्डिंग्स को जलाने का सिलसिला था, एहतजाज का सिलसिला था, वो अभी तक जारी है? Right now, protests is not going on. इस वक्त एहतजाज तो नहीं हो रहा, लेकिन मुजाहिरीन जो गुज़श्ता 20 दिनों से मुतहर्रिक थे वो आर्मी चीफ और दीगर हुकाम के साथ हुकूमत बनाने पर काम कर रहे हैं। वो हुकूमत की तश्कील के लिए बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं, जहाँ इजलास जारी है, जहाँ ये फैसले किए जाएंगे कि हुकूमत के अहम अरकान कौन होंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ एक शख्सियत सामने लाई जा चुकी है जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, जो नोबेल लॉरेट हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए अमन का नोबेल इनाम जीता था। वो ग्रामीण बैंक के बानी रुकन हैं, वो माहिर मईशत हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी जाने पहचाने जाते हैं। इस वक्त ढाका शहर में खामोशी है, लेकिन ये खौफ का सन्नाटा है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि लोग खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रहे हैं। कहीं भी पुलिस मौजूद नहीं है, पुलिस स्टेशन बंद हो गए हैं, पुलिस वहाँ से गायब है, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहाँ बराह रास्त एहतजाजी तलबा पर गोलियाँ चलाई गई थीं। मुल्क भर में बहुत से पुलिस स्टेशन को मुजाहिरीन की जानिब से जलाया जा चुका है, पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया है और पुलिस वाले मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। आर्मी सड़कों पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। मुल्क में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ट्रैफिक पुलिस भी दिखाई नहीं दे रही है और कुछ तलबा ने सड़कों पर फराइज संभाल लिए हैं और वो सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तशवीश की बात भी है जो बैनुल अक़वामी सतह पर भी महसूस की जा रही है, और वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियतों की इमारतों को तबाह करना है। आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन ने इस पर बयान जारी किया है। इसके अलावा जहाँ तक मैंने देखा है बहुत से सकाफती मुजस्समों को भी मस्ख़ करके तबाह कर दिया गया है। और तलबा डॉक्टर यूनुस के नाम का कह रहे हैं। कल एक इंटरव्यू में डॉक्टर यूनुस ने वाज़े तौर पर कहा कि बांग्लादेश को अब यहाँ से जमहूरियत की तरफ बढ़ना है। अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इलेक्शंस कराए और फिर इलेक्शंस इस तरह कराए कि लोगों को अपने लीडर्स चुनने का मौका मिले, उनको उनकी शख्सी आज़ादियाँ मिलें। ये क्या अब तवक्को की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि फ़ौज एक लंबे वक्त के लिए इक़्तिदार में आ जाए या लंबे वक्त के लिए इंटरिम सेटअप ले आए और आगे जाके इलेक्शन की तरफ ही बांग्लादेश जा रहा हो? I hope there will be elections, but it will take time. मुझे उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे, मगर इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बहुत आइडियल नहीं है। सूरत हाल बहुत मखदूश है। गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान ज़्यादातर हुकूमती ओहदों पर अवामी लीग के अरकान काबिज़ थे, इसलिए इस वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि वो आज़ादाना और शफाफ होंगे या नहीं। तहम मसाइल के हल होने और लोगों को मुनज़्ज़म करने के बाद इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। मैंने सुना है कि आने वाली हुकूमत की मुद्दत 3 साल तक हो सकती है। पहले तो ये था कि अबूरी हुकूमत सिर्फ 6 माह तक रह सकती थी, मगर अब लगता है कि हुकूमत ज़्यादा वक्त लेगी और तलबा किसी सूरत फ़ौज या उसकी हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं चाहते हैं। ये उनके बुनियादी मुतालबात में से है, लिहाजा वो इस पर भी बात कर रहे हैं कि उन्हें फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं चाहिए, बल्कि वो ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें आला पाए के सिविलियंस शामिल हों, जैसा कि असातिज़ा, कानूनदान और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने काफ़ी अरसे तक मुल्क की खिदमत की है। इसके अलावा NGOs के अफराद जैसा कि शहीदुल आलम, जो अपनी खिदमत के लिए बहुत मारूफ हैं और हुकूमत के खिलाफ और आज़ादी इजहार के हक़ में बोलते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीर रिहान मसूद इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। एक तरफ बांग्लादेश में सूरत हाल है, दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद का नाम लेकर ताने दिए गए। मिस्टर गौहर ने दिए।
अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। और हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद आज मुतनाज़ कानून साजी की।